So write down the question. How is the sex of the child determined? How is the sex of the child ये मुझे दे दो। तो बेटा आंसर वैसे ये इस पे लिखा हुआ है बाय सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट? सो सेक्स ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। इफ इट इज XX, then the child will be female. This is female. जिसको नहीं पता साइन का, they can write in the brackets. And if the sex chromosomes are XY, then it is male. Right? So I have given you the answer of this question, and then you have to give me answer of these 3 questions. Write down these 3. एट्थ ए अर्शदीप सिंह। 8th A अर्शदीप। हाँ जी, पहले माइक देखें आप कल भी। हाँ बोलो। यस मैम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। एट व्हाट टाइम द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिसाइडेड, कि अब ये बच्चा यही डेवलप होगा। हाँ, फर्टिलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन हियर। Write down one more question. How the sex of the child? How the sex of child is determined during fertilization. So you must be knowing the answer, but I am telling only how to write this answer. आपने एक बॉक्स बनाना है, टाइप ऑफ एग। दूसरे में लिखना है टाइप ऑफ स्पर्म। और तीसरे में लिख लेना है सेक्स ऑफ चाइल्ड। ये आपने एक बॉक्स बनाना है, एवरीबडी हियर। If the type of egg is X containing, type of sperm is X, ये दोनों फ्यूज करेंगे and child will be XX female. Eggs are only of one type, X containing. Sperm can be Y, and child will be XY, and it will be male.
And you can write this in this question also. How is the sex of the child determined in humans? First line we have to write with the help of sex chromosomes. Then you have to draw this, chart. Next question. Type of eggs produced in human females. Write down. Types of eggs produced in human females based on the type of sex chromosomes. Seventh है दिलप्रीत सिंह. सेवंथ ए दिलप्रीत सिंह. हाँ जी बेटा बोलो. यस. टाइप ऑफ एग्स. कितने टाइप के एग्स बनते हैं? एक्स कंटेनिंग बनते हैं, वाई कंटेनिंग बनते हैं, एक्स वाई कंटेनिंग बनते हैं. कितने टाइप के एग्स बनते हैं? 1. वन टाइप ऑफ ओनली. वेरी गुड. बैठो बेटा. Only eggs containing. Next question is types of sperms produced in human males. Types of sperms produced in human males based on type of sex chromosomes. 8th B Navjot. हाँ जी बेटा. Ma'am, 2 types. 2 types. कौन से 2 types? X and Y. Yes, very good. 2 types. X containing and Y containing. Very good. Sit down. X containing and Y containing sperms. Everybody done this? May we shift to the next slide? Okay. लिखिए फटाफट से. आप सिर्फ जल्दी से. एट्थ बी उपासना. उपासना आ जाओ जल्दी से. और 8th बी में से ही गुरशरण. उपासना एंड गुरशरण. हाँ जी उपासना बेटा. फर्स्ट बताइए द एग इन ह्यूमंस हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम्स, 1 एक्स 1 वाई या मोर देन 1 एक्स क्रोमोसोम्स? Ma'am, 1 chromosome X. 1 एक्स क्रोमोसोम. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे मोर देन 1. इट इज 1 एक्स क्रोमोसोम ओनली. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है गुरशरण. गुरशरण इज देयर? Yes. हाँ जी बोलिए. ह्यूमन मेल प्रोड्यूस only 1 type of, more than 2 type of sperms, 2 type of sperms, none of these. 2 types of sperm. 2 type of sperms हमने अभी किया है. X containing and Y containing. ठीक है जी. चलिए बैठे बैठे. ये आपने किया हुआ है, ये आपने लिख लिया होगा. लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. डू यू नो द डिजीजेस? ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. यू मे नोट डाउन.
एसटीडीज, टॉपिक लिखिए एसटीडीज। एसटीडीज का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्या मतलब है इसका? These are spread from infected person to healthy person by sexual intercourse. When the two people do sexual intercourse, sexual relations, then if one person is infected, then that person can spread या transmit the disease to the other partner. These are sexually transmitted diseases. सबसे कॉमन जो आप जगह जगह पोस्टर्स पे भी पढ़ते हैं, राइट? सो दैट इज फॉर एग्जाम्पल एड्स। कैन एनीबडी टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? जिसको पता है, एनीबडी रेज योर हैंड्स। नहीं मैं पूछती, बट किसी को पता है इसके बारे में? फुल फॉर्म पता है? और कितनी अवेयरनेस गवर्नमेंट देती है। यस, फ्रॉम 8C, हर्षवीर कौर, हर्षवीर 8C। Harshveer, do you know the full form of AIDS? Yes or no? No. No. चलिए, let me tell you. हाँ जी बोलो। AIDS मैम acquired immunodeficiency syndrome। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो बाकी सबको भी मैं बता देती हूँ। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब है ये जेनेटिक नहीं है, हमें पेरेंट से नहीं मिला। हम जिंदगी में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो हम लाइफ में एक्वायर करते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम होता है हमारा डिफेंस सिस्टम। इसकी अगर हमें ये डिजीज, पहले समझो, अगर एड्स हो जाता है किसी को तो उसको इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसका डिफेंस, जो वायरस इन्फेक्शन करता है, एड्स करता है, वो इम्यून सिस्टम को किल कर देता है, डिफेंस सिस्टम को किल कर देता है, ड्यू टू विच द एड्स पर्सन, द पर्सन इन्फेक्टेड विद एड्स do not have the ability to fight with various diseases. So, एड्स से एज सच पर्सन नहीं मरता है। मरता किस कारण है? उससे बहुत छोटी 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 बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जिससे द पर्सन डाइज, राइट? सो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय, लिखते चलो, इट इज कॉज्ड बाय वायरस, क्या नाम है? HIV। वायरस का नाम है HIV और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन यूनोवायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
that is HIV. Right? So AIDS is caused by HIV, ठीक है? And symptoms लिख लो. The virus kills the defense system of a person. Defense system of a person, due to which the infected person suffers from many diseases. बीमार ही रहता है फिर वो. नेक्स्ट लाइन में लिखिए देयर इज नो क्योर ऑफ एड्स. एड्स का कोई क्योर नहीं है, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड. हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको क्योर नहीं कर सकते, है ना? आपने पढ़ा भी हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है जी. नेक्स्ट डिजीज आ जाता है एड्स के बारे में, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, बट बिकॉज वी आर डूइंग reproduction, we are doing AIDS, we are doing adolescence, so it's very important to mention these diseases. So first is AIDS. AIDS is caused by HIV. Then gonorrhea and syphilis, ये भी STDs है. Both are bacterial diseases. लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, गोनोरिया, साइफिलिस, both are caused by bacteria. These can be cured but not completely. And I don't know कि गर्ल्स ने, है ना, अब आपकी एज कितनी, आई थिंक 14 ईयर्स, 13-14 ईयर्स. तो बेटा मैं क्या बता रही हूँ कि सर्विकल कैंसर, सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ द यूट्रस, यू नो. सर्विकल कैंसर इज ए वेरी कॉमन कैंसर, right? And it is caused by a virus. It is not an STD, sexually transmitted नहीं है, but cervical cancer is a disease of uterus caused by virus. And but nowadays, है ना, पिछले I think 8 to 10 years में एक वैक्सीन आ गई है सर्विकल कैंसर की. And every girl, सब सुनो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगवाओ. 3 डोजेस लगेंगी एट द गैप ऑफ 1 मंथ, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, पेरेंट्स को नहीं पता होता. सो गो टू योर डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, उनसे बात करो कि हमारी ये एज है और हमें सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगवानी है. ठीक है, इट इज फॉर प्रोटेक्शन, right? So cervical cancer, write down the disease cervical cancer. इसके अंदर लिखिए it is not an STD. It is a cancer of cervix, a part of uterus. बेटा ये वैक्सीन जो सर्विकल वैक्सीन की, सर्विकल कैंसर की वैक्सीन है,
इट इज मोस्ट इफेक्टिव एट योर एज, और ये 25 to 30 ईयर्स के बाद ये लगती भी नहीं है, ठीक है। इतनी अप टू 30 ईयर्स ही लगती है वैक्सीन, बट मैक्सिमम इसकी इफेक्टिविटी आपकी 14 से 16 साल के बीच में है, ठीक है जी। सो नॉट एन एसटीडी। कैंसर ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स क्या है? सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ द यूट्रस कॉज्ड बाय वायरस। सर्विकल कैंसर इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। और वायरस का नाम अगर कोई याद रख सकता है तो वायरस का नाम है एचपीवी, ह्यूमन। लिख लो, कभी वैसे ही दिमाग में रह जाता है, पेपिलोमा वायरस। सर्विकल कैंसर कैन नॉट बी क्योर्ड कंप्लीटली। ऑब्वियसली कैंसर की थोड़ी थोड़ी तो डोजेस से हम थोड़ा टाइम क्योर कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा रिकरेंस, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। ठीक है जी, आगे चलें। सो सर्विकल कैंसर, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। चलिए लिखिए फटाफट से। गिव डिफरेंसेस बिटवीन आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स में कितने एग्स पार्टिसिपेट करते हैं, कितने स्पर्म्स? नॉन आइडेंटिकल में कितने करते हैं, कितने एग्स और कितने स्पर्म्स? सो एट्थ सी, एट्थ सी में आ जाइए बेटा, कार्तिक। एट सी कार्तिक, हाँ जी कार्तिक। सो टेल मी, हाउ मेनी एग्स एंड स्पर्म्स फॉर्म आइडेंटिकल ट्विन्स? अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ बोलो, हाँ ऑन करो। 2. 4 एग्स और 2 स्पर्म्स चाहिए। बेटे इनकी बातों में मत आना, जो बोल रहे हैं अपने दिमाग से बताना। चलो मैं 1 मिनट इधर दिखाती हूँ, इधर छोड़ो, उसकी कॉपी भी छोड़ दो जिसकी कॉपी तुम देख रहे हो, है ना। इधर इधर देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। ये एग है, ये एक स्पर्म आया, ये जाइगोट, ये मोरुला, अब यहां पे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, टूट गया।
morula into two pieces. और ये दो पीसेस हो गए एंड देन आइडेंटिकल ट्विंस, ये दोनों ने दे डेवलप्ड इनटू टू बेबीज. नाउ टेल मी बेटा, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मेनी स्पर्म्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस? One. वन एग एंड वन स्पर्म. तभी तो आइडेंटिकल होंगे. अगर दो अंडे और दो स्पर्म्स होंगे, वो तो इधर देख उनकी बातें छोड़ दे. अगर टू एग्स और टू स्पर्म्स होंगे तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होंगे. टू एग्स अलग है, टू स्पर्म्स अलग है. बट इफ वन एग एंड वन स्पर्म, ओनली देन दे विल बी आइडेंटिकल. राइट? सो आप ये बना सकते हो दोबारा से. बैठो बेटा. सो वन एग वन स्पर्म. और अगर ये आ जाता है केस नॉन आइडेंटिकल का. तो अगेन नॉन आइडेंटिकल में जैसे आपको दिखाया है, टू एग्स एंड टू स्पर्म्स. ये जो दो बच्चे आप अलग अलग टाइम पे हुए हो, वो बाई चांस एक टाइम पे हो गए. अदरवाइज दे आर लाइक टू सिबलिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट. ठीक है, बना लो. आइडेंटिकल ट्विंस लिखना, आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. कर लिया सबने? May we shift to the another slide? Yes. Okay. This we have done. चलिए ये अब दोबारा से बनाओ अपनी कॉपी में. दोबारा से डू इट. Name it this one, and this one. Again ये दोबारा से आ रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट्थ डी के स्टूडेंट्स, आई एम कॉलिंग हरप्रीत. इज हरप्रीत देयर? कहां पर है हरप्रीत? एट्थ डी. आ जाओ आ जाओ. एट्थ एफ में है. काम छोड़ दो. कॉपी में से तो देख के हमने बोलना ही नहीं है. फटाफट से बोलो मुझे. फर्स्ट फेज कौन सा है बेटा? Menstrual. मेंस्ट्रुअल फेज. वेरी गुड. सबने बनाना है बेटा. कितने दिन के लिए होता है बेटा? फर्स्ट डे टू 5. 5 days. नो सेक्स हॉर्मोन्स. यहाँ पे सेक्स हॉर्मोन्स की सिक्रीशन नहीं होती है. देन टेल मी विच इज द सेकंड फेज हरप्रीत? Follicular. फॉलिक्यूलर फेज. वेरी गुड. ड्यूरेशन बताओ बेटा. 6 to 12 days. यस.
Which sex hormone mainly is secreted during this phase? ये मैं बता देती हूँ, ईस्ट्रोजन। चलिए थर्ड फेज बताओ बेटा। Ovulation. ओव्यूलेशन। कौन से दिनों में? 13 to 15 days. Then fourth phase, Secretory phase. secretory phase. (16 to 28 days. बैठो बेटा. And it is under the control of progesterone. चलिए जी, you will have to tell me कि what occurs during these phases. Let me ask 8th D हर्षिता. 8th D हर्षिता कहां पे बैठी है? आ जाओ बेटा. हर्षिता, टेल मी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है? एग बन रहा है, एग रिलीज हो रहा है, यूट्रस की वॉल बन रही है कि यूट्रस की वॉल टूट रही है? यूट्रस की वॉल टूट रही है। तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ यूट्रस वॉल. सेकंड में बताओ बेटा. What happens during follicular phase? हाँ जी हर्षिता, डू यू रिमेम्बर? अच्छा मुझे बताओ, एग मेच्योर हो रहा है, एग बन रहा है कि एग रिलीज हो रहा है? रिलीज हो रहा है। व्हाट इज ओव्यूलेशन बेटा? ये तो क्वेश्चन आने हैं, ये देख लो 5 मार्क्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा आना है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. बैठो बेटा. तो नेक्स्ट स्टूडेंट इज 8th D नितिनदीप. नितिनदीप इज देयर 8th D. यस. पहले बेटा जूम से माइक ऑन करना 8th D में. बेटा जूम से माइक ऑन करना पड़ेगा. मैम जरा दे. हाँ अब बोलो बेटा. What happens during follicular phase? अपना माइक का वो भी ऑन करो बेटा. हाँ क्या बनता है यहाँ पे? क्या एग रिलीज हो रहा है कि एग मेच्योर हो रहा है? मेच्योर. फॉर्मेशन ऑफ एग यू कैन से. और दूसरा पॉइंट मैं बता देती हूँ, थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल. लिख लो दोबारा से, नो प्रॉब्लम. अच्छा बेटा नितिनदीप, आई होप नितिनदीप ही है. हाँ जी. सी ओव्यूलेशन फेज में क्या हो रहा है बेटा? यस, रिलीज ऑफ एग या ओवम एक ही बात है, फ्रॉम ओवरी. एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग secretory phase? Yes, uterus wall is maintained. बैठो बेटा, very good. Thick uterus wall is maintained.
4 कॉलम्स बनाओ, मेंस्ट्रुअल फेज, डेज, हॉर्मोन्स और लास्ट में एक्शंस ड्यूरिंग दीज फेजेस. चलिए आगे. फटाफट से राइट डाउन दिस क्विकली. बेटा ये आपकी केस स्टडी है, फटाफट. मुश्किल नहीं है, बट रीड इट एंड राइट इट ऑल्सो. प्रोट्रूजन मीन्स बाहर को निकलना. स्वेलिंग सी. एट्थ ई में से मुझे आंसर देना है बेटा. इशिता, जशनप्रीत एंड निहारिका. इशिता, जशनप्रीत एंड निहारिका. Yes, Ishita. First question. What is the cause of swelling in Johan? हाँ, पता है या नहीं पता मुझे बताते चलो. Yes or no, Ishita? जोर से बोलो अगर पता है तो, मुझे सुन नहीं रहा है आपकी आवाज. जॉहन, बट बेटे डॉक्टर ने जॉहन को क्या कहा है? दैट इट इज ए नॉर्मल फीचर इन बॉयज while they are growing up. But because of growth of vocal cord. Yes, larynx हम कह सकते हैं. Cause of swelling is due to growth of larynx या voice box. हम एडम एप्पल लिख सकते हैं. Yes, बिल्कुल लिख सकते हो. Adam's apple. Next student, what is the cause of swelling in Radha? राधा के भी गले में स्वेलिंग है. किस कारण है? जशनप्रीत जल्दी से. ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन. ठीक है, ड्यू टू lack of iodine in diet. I2 means iodine in diet. निहारिका, नेक्स्ट निहारिका. निहारिका जल्दी से बताओ बेटा. नेम द डिजीज राधा इज सफरिंग फ्रॉम. बहुत टाइम लगा रही हो बेटा. Goiter. And how it can be cured?
can be cured by taking iodine rich diet. और क्या करना है? आयोडीन की कमी से है तो ठीक कैसे होगा? आयोडीन रिच डाइट. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा. मैम हमारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि थायरॉक्साइन की कमी से गोइटर होता है। बेटा हम ये भी कह सकते हैं थायरॉक्सिन, बट मेनली थायरॉक्सिन की कमी. थायरॉक्सिन क्यों नहीं बन रहा है? आयोडीन की कमी से. ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो, इट कैन ऑल्सो बी, बट थोड़ा सा वो गड़बड़ है. एग्जैक्ट आंसर यही है, बट इफ यू कैन राइट दैट. क्योंकि थायरॉक्सिन की कमी कई कारणों से हो सकती है. आयोडीन की कमी से भी हो सकती है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. बट गोइटर इज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट, ड्यू टू विच आप लिख सकते हो, ड्यू टू विच लेस थायरॉक्सिन इज फॉर्म्ड. क्योंकि क्योर के लिए हम थायरॉक्सिन नहीं लेनी है. गोइटर के लिए, क्योर के लिए हमें आयोडीन ही लेनी है. इज इट ओके? किसी को कंफ्यूजन है? अगर वहां पे हम सिर्फ लिखेंगे लैक ऑफ थायरॉक्सिन, तो यहां पे हम बाय हैविंग थायरॉक्सिन हार्मोन. ठीक है, नहीं. गोइटर कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग आयोडीन रिच डाइट. तो इसलिए करेक्ट आंसर इज दिस ओनली. बातें नहीं. 8C बॉयज सीधे होके बैठ. पहले सीधे होके, फर्स्ट बेंच, मिडल रो, सीधे होके बैठ. हाँ, चलिए. जल्दी से आई होप आपका टाइम भी हो रहा है. ये जल्दी से लिख लो फटाफट. लास्ट क्वेश्चन है, आई होप यही लास्ट ही है. हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. एट्थ एफ मानवदीप. एट्थ एफ मानवदीप है. मानवदीप आजा बेटा, आजा जल्दी से. देखो अब यहाँ पे है कि जिस कारण भी है, इन विच द ब्लड शुगर लेवल ऑफ ए पर्सन राइजेस टू मच. तो बेटा मुझे ये बताइए कि डिजीज क्या होगा जिसमें शुगर लेवल बढ़ जाती है? उस डिजीज का क्या नाम है? डायबिटीज. डायबिटीज. सो वाई इज डायबिटीज? किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है बेटा? इंसुलिन. इंसुलिन. कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? पैनक्रियास. दिस पेनक्रियास. वेरी गुड. एंड द पर्सन को हम क्या बोल देते हैं? डायबिटिक. वेरी गुड. बैठो बेटा. डायबिटिक पर्सन. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन एंड एडोलेसेंस. रिवीजन भी करवा दी, आपको करवा भी दिया. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो. ठीक है, टुमारो वी विल रिवाइज कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, तो आप भी रिवाइज करके आओ तो जल्दी होगा. राइट, और उसके बाद लाइट रिवाइज कर लेंगे. ठीक है जी. तो इस वीक जो है आपकी
आई होप 2 to 3 days, आज है वेडनेसडे, कल कोल एंड पेट्रोलियम, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन लाइट को लग जाएंगे। इस वीक हम साइंस रिवाइज करके नेक्स्ट वीक हम जो है थोड़ा सा मैथ्स रिवाइज कर लेंगे। ओके, ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बाय।